Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Shahla Akram, Senior Subject Specialist Biology in DPS and Inter-College Sahiwal. I welcome you all in DPS online classes. Dear students, today we are going to start chapter number 13, that is gaseous exchange, and the topics we are going to discuss in this lesson are advantages and disadvantages of gas exchange and water and air, gaseous exchange in plants, photorespiration, properties of respiratory surfaces. Let's start our lesson. Advantages and disadvantages of gaseous exchange in air and water. Now, what is gaseous exchange? Exchange of gases, that is intake of oxygen and release of carbon dioxide between organism and its environment, is called gaseous exchange. Exchange of gases during organismic respiration is carried out by diffusion. Respiratory gases are exchanged between body fluid and outside medium, which may be water or air. कोई एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म जो है वो रेस्पिरेटरी गैसेस की एक्सचेंज के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता. फॉर दैट मैटर, air is better respiratory medium than water. Why we say that air is better medium than water? Oxygen can be obtained more easily from air than from water because of many reasons. Firstly, the oxygen content of air is much higher than oxygen content of equal volume of water. 1 लीटर एयर जो है उसमें 200 मिलीलीटर ऑक्सीजन जो है वो मौजूद होती है, जबकि 1 लीटर पानी जो है उसमें 10 मिलीलीटर से भी कम ऑक्सीजन मौजूद होती है. सेकेंडली, ऑक्सीजन डिफ्यूजेस अबाउट 8000 टाइम्स मोर क्विकली इन एयर देन इन वाटर. ब्रीथिंग एंड वेंटिलेशन इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस. The ventilation of water is far more difficult than ventilation of air because water is 8000 times more dense than air. Ventilation जो है वो पानी से मुश्किल होती है हवा की निस्बत. क्यों? क्योंकि पानी जो है वो 8000 टाइम्स ज़्यादा डेंस होता है हवा से. विस्कोसिटी के हिसाब से देखें तो वाटर जो है वो 50 टाइम्स ज़्यादा विस्कस है. इसकी वजह से भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो हैं वो वाटर से मुश्किल हो जाती है. इस वजह से एयर जो है उसको बेटर मीडियम जो है वो कहा जाता है देन वाटर. Viscosity is the state of being thick, sticky and semi-fluid in consistency. Gaseous exchange in plants. Plants, like animals, also get their energy from respiration. Plants भी animals की तरह से respiration से ही अपने लिए एनर्जी हासिल करते हैं, लेकिन प्लांट्स के अंदर कोई स्पेशल ऑर्गन और सिस्टम जो है वो गैशियस एक्सचेंज के लिए मौजूद नहीं है, जैसा कि हायर एनिमल्स जो है उनके अंदर स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो मौजूद होता है, जो कि गैशियस एक्सचेंज और रेस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है. Every cell of plant carry out exchange according to its need. The transport system of plants, जिसमें xylem और phloem tissues जो है वो शामिल हैं, they are also not involved in the transport of gases. In most cells of mesophyll, which are specialized for photosynthesis, there is present large air spaces. These air spaces directly involve in gaseous exchange. ये air spaces जो हैं वो gaseous exchange में involve हैं. Now the different structures which are involved in the gaseous exchange in plants. Number one is stomata.
Stomata are the main site of gaseous exchange in plants. Stomata are largely present in leaves and in the young stem. लैंड पे पाए जाने वाले प्लांट्स अपने लिए ऑक्सीजन एयर से हासिल करते हैं और ये एयर स्टोमेटा के थ्रू जो है वो प्लांट्स में एंटर होती है. Enormous number of stomata are present on leaves. It is estimated that there are 12,000 stomata per square centimeter of leaf surface in tobacco plant. These stomata lead to intercellular spaces of mesophyll tissues. ये stomata जो है वो intercellular spaces जो है वो mesophyll tissues वहाँ तक air जो है उसको लेके जाते हैं. ये air spaces जो है वो honeycomb की तरह से नजर आती हैं. These air spaces may comprise up to 40% of total volume of leaf. Exchange of gases जो है वो इन air spaces में जो air मौजूद है उसके दरमियान और moist surface of mesophyll cells जो है उनके दरमियान फौरी तौर पे takes place होती है. Moist surface जो है that facilitates the diffusion of gases. Here you can see the structure of stomata. Another structure which is used for the gaseous exchange is called lenticel. In older stems कोर टिश्यू आर प्रेजेंट. ओल्डर स्टेम्स में कोर टिश्यू जो है वो मौजूद होते हैं जो कि डेड सेल्स जो हैं उनके ऊपर मुश्तमिल होते हैं. द कोर टिश्यू हैज स्पेशल पोर्स कॉल्ड लेंटिसेल्स. कोर टिश्यूज में स्पेशल पोर्स मौजूद हैं जिनको लेंटिसेल्स कहा जाता है, विच इज इन्वॉल्व इन गैशियस एक्सचेंज. कि ये गैशियस एक्सचेंज है उसमें इन्वॉल्व होते हैं. रूट्स जो हैं वो लैंड प्लांट्स की वो सॉइल के अंदर मौजूद होती हैं, तो वो अपने लिए ऑक्सीजन कहाँ से हासिल करती हैं? दे गेट देयर ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर जो कि सॉइल पार्टिकल्स जो हैं उनके दरमियान मौजूद होती है. Aquatic plants obtain their oxygen by diffusion from dissolved oxygen in water. Core cambium. Core cambium is a tissue found in many vascular plants as a part of epidermis. Here are the diagrams of lenticels. Photorespiration. Respiratory activity which occur in plants during daytime is called photorespiration. इस प्रोसेस में जिसको हम फोटो रेस्पिरेशन कह रहे हैं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया जाता है और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया जाता है. लेकिन यहाँ पे जो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब की जा रही है वो एटीपी को प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल नहीं होती. जैसा कि रेस्पिरेटरी प्रोसेस जो है उसके अंदर हमने देखा कि ऑक्सीजन को यूज़ किया जाता है फूड की ब्रेकडाउन के लिए और उसके नतीजे में जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज़ यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी. सो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है दैट इज़ नॉट यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी. इन अदर वर्ड्स, photorespiration is a light dependent process during which light is absorbed and carbon dioxide is released. Photorespiration वो प्रोसेस है जिसमें रुबुलोज बिसफॉस्फेट जो कि कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज दोनों तरह से एक्ट कर सकता है और इसको रिबिस्को कहा जाता है. वो ऑक्सीजन को फिक्स करता है कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय. कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होगी तो फिर केल्विन साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा. तो यहाँ पे केल्विन साइकिल को स्टॉप करके ऑक्सीजन को फिक्स कर दिया जाता है. उसकी वजह से हम कह रहे हैं कि ओवरऑल रेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन जो है वो कम हो जाता है और उससे प्लांट ग्रोथ जो है वो अफेक्ट होती है. Now the process of photorespiration. First step is ribulose 1,5-bisphosphate RUBP react with oxygen. The first step of photorespiration during which RUBP reacts with oxygen is carried out by ribisco. Ribisco is the enzyme जो कि इस process में इस्तेमाल होगा. This is the most abundant protein in chloroplast and probably the most abundant protein in world.
रिबिस्को इज कार्बोक्सिलेज एज वेल एज ऑक्सीजनेज। रिबिस्को दो तरह से काम करता है, एज अ कार्बोक्सिलेज और एज अ ऑक्सीजनेज। When Ribisco acts as carboxylase, it adds कार्बन डाइऑक्साइड टू RuBP। जब रिबिस्को जो है वो कार्बोक्सिलेज के तौर पे काम करता है तो ये RuBP मॉलिक्यूल जो है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो उसको ऐड करता है और उससे केल्विन साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। RuBP एक एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है जो ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को दोनों को एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखता है। On the other hand, when is oxygenase, it adds oxygen to the RuBP। दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि अगर RuBP ऑक्सीजनेज के तौर पे काम करेगा तो ये ऑक्सीजन को RuBP में ऐड करेगा। Both these reactions compete with each other. When RuBP reacts with oxygen, a 2-carbon compound glycolate is produced। जब RuBP ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो जो पहला कंपाउंड हमारे पास हासिल होता है दैट इज अ 2-carbon containing compound which is called glycolate। RuBP react with oxygen and it form glycolate। The glycolate thus produced diffuses into the membrane bounded organelles known as peroxisomes। glycolate जो प्रोड्यूस हो रहा है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस पेरोक्सिसोम्स जो उनमें डिफ्यूज हो जाता है। इन पेरोक्सिसोम्स ग्लाइकोलेट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइसिन थ्रू अ सीरीज ऑफ रिएक्शन। पेरोक्सिसोम में ग्लाइकोलेट जो है वो ग्लाइसिन में कन्वर्ट हो जाता है। सीरीज ऑफ रिएक्शन डिफरेंट स्टेप्स जो हैं उनमें से पास होने के बाद ग्लाइकोलेट जो है दैट कन्वर्ट इनटू ग्लाइसिन। ग्लाइसिन जो है वो एक सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है जो अपनी फॉर्मेशन के फौरन बाद माइटोकॉन्ड्रिया जो उसमें डिफ्यूज हो जाता है। यहाँ पे 2 ग्लाइसिन मॉलिक्यूल जो है वो कन्वर्ट होते हैं सीरीन में और एक मॉलिक्यूल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्म होगा। 2 ग्लाइसिन मॉलिक्यूल आर कन्वर्टेड इनटू serine and carbon dioxide molecule is released. So this pathway in which RuBP is converted into serine is called photorespiration. फोटोरेस्पिरेशन में भी ATP और NADPH को उसी तरह से इस्तेमाल किया जाता है जिस तरह से केल्विन बेंसन साइकिल जो उसमें यूज किया जाता है. बट इन फैक्ट फोटोरेस्पिरेशन इज रिवर्स ऑफ केल्विन साइकिल. फोटोरेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया जाता है जबकि केल्विन बेंसन साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स में. मोस्ट प्लांट्स में फोटोरेस्पिरेशन जो है वो रिड्यूस कर देती है कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन को 25%. Consequences: in a hot and dry day, the level of oxygen inside the leaf rises. कि जब एक hot और dry day होता है तो उसमें लीफ के अंदर ऑक्सीजन की मिकदार जो उसमें इजाफा होता चला जाता है. क्यों होता है ऐसा? कि स्टोमेटा को बंद कर दिया जाता है ताकि एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर जो उसको स्टॉप किया जा सके. कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार जो है वो लीफ के अंदर कम होती जाती है क्योंकि प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो कॉन्टिन्यूसली प्लांट के अंदर जारी है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो उसको इस्तेमाल किया जा रहा है. इस तरह से ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज होता जाता है बिकॉज स्टोमेटा क्लोज हैं और ऑक्सीजन को वहाँ से बाहर रिलीज नहीं किया जा सकता. ये भी इंटरेस्टिंग है कि फोटो रेस्पिरेशन जो है वो फोटोसिंथेटिक प्रोसेस जो उसको कम करने का बाइस जो है वो बनता है और ये प्रोसेस प्लांट्स के लिए एसेंशियल नहीं है. उनमें रेस्पिरेशन का प्रोसेस सेपरेटली टेक्स प्लेस हो रहा है. दिस इज नॉट अ रेस्पिरेशन. सो इसलिए ये प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी प्रोसेस नहीं है. कि अगर फोटो रेस्पिरेशन को केमिकली स्टॉप कर दिया जाए फिर भी प्लांट्स ग्रो करते रहते हैं. Then why does photorespiration exist? The common simple answer to this question is that active site of ribisco is evolved to bind both carbon dioxide and oxygen together. Ribisco की एक्टिव साइट जो है वो दोनों तरह से काम कर सकती है. कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों को ये फिक्स करने की सलाहियत रखती है.
ओरिजिनली इट वॉज नॉट अ प्रॉब्लम एज देयर वॉज लिटिल ऑक्सीजन, कि आमतौर पर यह मसला इसलिए नहीं बनता कि लीफ जो है वो फौरी तौर पे ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं इनटू द एटमॉस्फेयर, इसलिए इनसाइड द लीफ जो है वो बहुत कम ऑक्सीजन मौजूद होती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर से वो कॉन्टिन्यूसली डिफ्यूज करते हैं। इस वजह से दे कंटेन हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन इट। सो रुबिस्को जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके केल्विन साइकिल जो उसको स्टार्ट कर देता है। लेकिन हॉट और ड्राई डे में जब स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, ऑक्सीजन कंटेंट्स जो हैं वो लीफ में ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार कम हो जाती है, तो फिर रुबिस्को जो है वो ऑक्सीजन को फिक्स करना शुरू कर देता है और उसकी वजह से फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अगर ऑक्सीजन के कंटेंट्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं तो फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट होगी, अदरवाइज फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट नहीं होगी। Now brief account of photorespiration. RUBP react with oxygen and it form glycolate. Glycolate जो है वो convert हो जाता है into a simplest amino acid which is called glycine. और ग्लाइसिन जो है 2 ग्लाइसिन मॉलिक्यूल जो है उनके मिलने से एक सीरीन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होती है। सो ये प्रोसेस दिन के वक्त टेक्स प्लेस होता है और इसमें ऑक्सीजन को इस्तेमाल किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया जाता है जैसा कि रेस्पिरेशन में होता है, इसलिए इसको फोटो रेस्पिरेशन कहा गया। डियर स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज properties of respiratory surfaces in animals. Respiratory surfaces in animals are the site where gaseous exchange occur. Respiratory surfaces in animal exhibits the following features. Number 1, large surface and moisture. Number 2, thin epithelium. Number 3, ventilation. And number 4, capillary network. First we have large surface and moisture. सरफेस एरिया जो है वो बहुत बड़ा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए और मॉइस्ट होना चाहिए, जैसा कि लंग्स जो कि लैंड वर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं और गिल्स जो कि एक्वेटिक एनिमल्स जैसे फिश है उसके अंदर मौजूद होते हैं, उनके अंदर हम देखते हैं कि दे हैव लार्ज सरफेस एरिया एंड द सरफेस इज मॉइस्ट, ताकि गैसियस एक्सचेंज है उसको फैसिलिटेट किया जा सके। Thin epithelium. The distance across which diffusion has to take place should be little. जैसे एनिमल्स में हमने देखा कि एपिथेलियम जो कि एयर और ब्लड जो है उसको सेपरेट करती है, ब्लड वेसल जो है उसकी एपिथेलियम और एयर स्पेस जो कि एल्वेलर स्पेस है उसकी एपिथेलियम सिर्फ 1 सेल थिक होती है। उसकी वजह से डिफ्यूजन जो है वो बहुत आसानी से टेक्स प्लेस हो जाती है। यू कैन सी इट इन द डायग्राम एज वेल। एल्वेलर सैक जो है उसकी एपिथेलियम भी 1 सेल थिक है और ब्लड वेसल जो है कैपिलरी जो है उसकी एपिथेलियम जो है दैट इज ऑल्सो 1 सेल थिक। वेंटिलेशन. वेंटिलेशन मेंटेन अ स्टीप डिफ्यूजन ग्रेडियंट. वेंटिलेशन जो है वो एक स्टीप डिफ्यूजन ग्रेडियंट है उसको मेंटेन करता है। Difference in the concentration of substance between 2 areas is called concentration gradient. The bigger the difference, the steeper the concentration gradient and faster the molecule of a substance will diffuse. जितना difference ज़्यादा होगा उतनी तेज़ी के साथ molecules जो हैं वो diffuse हो सकेंगे। So ventilation जो है वो steep diffusion gradient जो उसको maintain करती है। There is a big difference in the concentration of the gases at 2 points which bring about diffusion. Capillary network. Respiratory surface should have an extensive network of capillary जिसके ज़रिए से continuously blood जो है वो उस जगह से पास हो सके with an adequate speed ताकि diffusion जो है उसको facilitate किया जा सके। In this way, steep diffusion gradient is maintained जो कि रैपिड डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन जो है उसको हेल्प करता है। डियर स्टूडेंट, हमारा आज का लेसन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब इससे रेलिवेंट असाइनमेंट है, आंसर दीज क्वेश्चंस। व्हाट इज द रोल ऑफ स्टोमेटा इन गैसियस एक्सचेंज? व्हाट डू यू नो अबाउट लेंटिसेल्स? डिफाइन
photorespiration. What are the consequences of photorespiration? And write down the properties of respiratory surfaces. I hope you understand today's lesson.